ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ جموں کشمیر میں آج دو الگ الگ دل دو سڑک حادثات میں 21 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں افراد زخمی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سڑک حادثات میں انسانی جانوں کے ضیاع پر کیا دکھ کا اظہار۔ سڑک حادثات میں جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 50,000 روپے ایکسگریشیا فراہم کرنے کا وزیر اعظم کا اعلان۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کی چناو مہم ہوئی آج اختتام پذیر۔ اس مرحلے میں ہونے والے 57 پارلیمانی حلقوں میں آج دن بھر رہا سیاسی جلسوں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری، اور سونے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے جموں کشمیر کے سونا سے وابستہ کاروباری پریشان۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں اخنور شاہراہ پر آج پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 21 یاتری جاں بحق جبکہ 40 دیگر زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ جموں پنچ شاہراہ پر چنگی موڑ اخنور کے قریب اس وقت پیش آیا جب کرکشیتر ہریانہ سے شیو کھوڑی کے لیے جا رہی یاتریوں سے بھری ایک بس گہری کھائی میں جا گری۔ زخمی مسافروں کو فوری طور اسپتال داخل کیا گیا۔ شدید طور زخمی ہوئے افراد کو جموں میڈیکل کالج منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ درنگبل پاپور میں آج صبح پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک مسافر جاں بحق اور 15 دیگر زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر گاڑی سڑک پر پلٹی۔ یہ بس جموں سے سری نگر کی طرف آ رہی تھی۔ زخمیوں کو فوری طور علاج معالجے کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اخنور میں پیش آئے سڑک حادثے میں ہوئے انسانی جانوں کے ضیاع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس حادثے میں جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے جبکہ زخمی ہوئے افراد کو فی کس 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج اخنور اور درنگبل پاپور میں پیش آئے سڑک حادثات میں انسانی جانوں کے ضیاع ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے ان حادثات میں جاں بحق ہوئے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ منوج سنہا نے زخمی ہوئے افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد مہیا کرے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے چنگی موڑا اخنور اور درنگبل پاپور میں پیش آئے سڑک حادثات میں انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ انہوں نے جاں بحق ہوئے افراد کو بھرپور مالی مدد فراہم کرنے کا سرکار سے مطالبہ کیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے جاری چناو مہم آج اختتام پذیر ہوئی۔ اس مرحلے میں 1 جون کو 57 پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے، جن سے 904 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے آج دن بھر ان 57 پارلیمانی حلقوں میں سیاسی جلسے جلوسوں اور روڈ شوز کا اہتمام ہوا۔ اس دوران امیدواروں اور پارٹی لیڈران نے ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج اتر پردیش میں 4 ریلیوں میں شرکت کی۔ مہاراج گنج میں ایک چناو ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی ان انتخابات میں 400 سے زائد سیٹوں پر جیت درج کرے گی۔ دیوریا میں ایک اور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے بھی اتر پردیش میں آج کئی چناوی ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا الائنس کی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو اگنی ویر اسکیم ختم کی جائے گی۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کلو ہماچل پردیش میں ایک چناوی ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس عوامی مفادات کو پہلی ترجیح دینے والی پارٹی ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ہوم، پولیس اور لا محکمے کے اعلیٰ افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں پارلیمنٹ کی طرف سے حال ہی میں پاس کیے گئے 3 کرمنل قوانین کو جموں کشمیر میں لاگو کیے جانے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کئی ہدایات جاری کی۔ اس دوران کشمیر کے ڈویژنل کمشنر وجے کمار بیدوری کی صدارت میں آج گلمرگ میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں گلمرگ میں سیاحوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے اور اس سیاحتی مقام پر ٹریفک جام سے نجات پانے کے طور طریقوں پر غور و خوض ہوا۔ اس دوران ڈویژنل کمشنر نے کئی ہدایات جاری کی۔
श्री नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने आज एक मीटिंग के दौरान शहर श्रीनगर में वेस्ट मैनेजमेंट के तौर तरीकों का जायजा लिया। मीटिंग में शहर श्रीनगर से कूड़ा करकट उठाने और इसे ठिकाने लगाने के अमल का बगौर जायजा लिया गया। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि शहर श्रीनगर से निकलने वाले कूड़े करकट को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाया जाना चाहिए। कमिश्नर ने इस मौके पर शहर में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह की क़यादत में आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अमलावरी का जायजा लिया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी ने यूटी में ABDM के तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। हरदपंजू बडगाम में आज CRPF की 181वीं बटालियन की तरफ से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस तिब्बी कैंप के दौरान CRPF कैंप के डॉक्टरों और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खान साहब के डॉक्टरों ने लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया। तिब्बी कैंप का इफ्तिताह 181वीं CRPF बटालियन के कमांडेंट संजय कुमार ने किया। इस मौके पर इलाके के कुछ पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान 425 मकामी लोगों की तिब्बी जांच करने के साथ साथ उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मुंतज़मीन का कहना है कि ऐसे कैंप मुस्तकबिल में भी मुनक्किद किए जाएंगे ताकि गरीब आवाम को सेहत की सहूलियात मुयस्सर रहेंगी। वादी कश्मीर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के दौरान लोगों को पीने के पानी के इस्तेमाल और मुख्तलिफ बीमारियों से बचने की तदाबीर की जानकारी देने के सिलसिले में आज पब्लिक हेल्थ सेंटर नारबल में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम का एहतमाम मेडिकल कॉलेज बेमना श्रीनगर और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम ने मुश्तरका तौर किया था। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों, आशा वर्करों और आम लोगों ने शिरकत की। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही मुल्की सयाहों के वादी का रुख करने में इजाफा देखने को मिला है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर इन दिनों सयाहों का काफी रश है। इस साल जनवरी से अब तक 5,26,975 सयाहों ने पहलगाम की सैर की है, जिनमें से 4,05,537 मुल्की जबकि 7,916 गैर मुल्की सयाह शामिल हैं। यहाँ आने वाले सयाह पहलगाम की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होकर वादी कश्मीर की भरपूर तारीफ कर रहे हैं। कई सियासी वर्करों ने आज श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन वर्करों का पार्टी के प्रदेश सदर वकार सुलवानी ने खैरमकदम किया। उन्होंने इन कारकुनों पर जोर दिया कि वह कांग्रेस प्लेटफॉर्म को लोगों की खिदमत करने के लिए इस्तेमाल करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाहिद जमात है जो लोगों के जज्बात और ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की अजीम दीनी, सियासी और समाजी शख्सियत मरहूम एडवोकेट हकीम हबीबुल्लाह की 26वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मरहूम को एक ईमानदार सियासतदान करार देते हुए उनकी आवाम के तय खिदमात की सराहना की। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर ने आज जबलीपुर अनंतनाग के फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान दुकानदारों और किसानों से बात की। सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने की वजह से जम्मू कश्मीर में यह कारोबार मुतासिर हुआ है। ईरान और इसराइल के बीच जारी जंग की वजह से सोने की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वादी कश्मीर के सोने के कारोबारियों पर काफी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं क्योंकि लोग सोना खरीदने से परहेज कर रहे हैं। सोने के व्यापारियों का कहना है कि अगरचे शादियों का मौसम करीब है ताहम खरीदार सोना खरीदने से कतरा रहे हैं। कश्मीर गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन शहर खास के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल शाह का कहना है कि गुज़श्ता एक महीने से उनका कारोबार ठप है। बता दूं कि गोल्ड की जो रेट है अभी 24 कैरेट की अप्रॉक्सीमेटली 7400 है। और जहां तक हम डिमांड की बात कर रहे हैं, जब से ये जियो पॉलिटिकल वॉर्स हुए हैं मतलब फॉरेन्स में बाहर, तो उससे थोड़ा सा डिमांड बहुत कम हो गई है। गोल्ड के भाव बहुत तेज़ हो गए हैं, तो इस वजह से पूरी डिमांड बहुत कम हो गई है। इस टाइम परचेजिंग पावर लोगों का बहुत कम हो गया है।
क्योंकि गोल्ड का रेट अगर आप देखें तो 30% बढ़ गया है। लास्ट ईयर अगर हम देखें 5,000 का जहां 24 कैरेट का भाव था, आज वही भाव 7400 का है, तो बहुत ज़्यादा हाइक हो गया है। अभी परचेजिंग पावर बहुत, मतलब मिडिल क्लास लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं। शायद लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग आए या कम हो जाए, गोल्ड कंसोलिडेट हो जाए, लेकिन अभी बहुत ही कम, मतलब परचेजिंग पावर लोगों का बहुत कम हो गया और डिमांड भी बहुत कम हो गई है अभी मार्केट में। पुलिस ने आज एक मुसद्दक़ का इत्तला मिलने पर कालादरन कुलगाम में एक बैंडसा मिल से 209 किलोग्राम के करीब पोपीस्ट्रा बरामद किया। ताहम इस कार्रवाई से पहले बैंडसा मिल का मालिक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि कालादरन का गुलाम नबी खुट्टे, जो कि बैंडसा मिल का मालिक है, मकामी नौजवानों को ड्रग्स फराहम कर रहा था। बुलंदपाए वली कामिल गयासुद्दीन अकमल आरिफ बिल्ला मखदूमी हजरत शेख नेमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का 296वां सालाना उर्स मुबारक अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया हजरत मिर्जा अकमलुद्दीन बदख्शी रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा हवल में आज सुबह सवेरे ही कुरान ख्वानी, खतमातुल मौज़ूमात और दुरूद व अज़कार की मजलिस आरास्ता हुई। मजलिस में काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। कश्मीर यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाली तालिबा सैयद उज़मा को ग्लोबल शेफर्स एनुअल समिट के लिए मुंतखब किया गया है। यह समिट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मुनक्किद होने जा रहा है। मुकदम मोहल्ला बटपोरा, हजरत बल, श्रीनगर और इससे मुल्क इलाका जात के अवाम का कहना है कि उन्हें पीने के साफ पानी के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि इस इलाके को बिजली कैनाल हडूरा से जो पानी मुहैया किया जा रहा है वो पीने के लायक नहीं होता है। इलाके के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी ये मुश्किल दूर करने के लिए इकदाम किए जाए और अगर हो सके तो उन्हें रंगिल वाटर सप्लाई स्कीम से पीने का पानी फराहम किया जाए ताकि इलाके के लोग गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों से बच सके। हमारे यहाँ पानी की बहुत अशद जरूरत है, जो कि पिछले 30 सालों से हम जूझ रहे हैं। यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, माओ बहनों को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स अप्रूव किए हैं, खासकर रखी ज़ुकूरा जो नई स्कीम बनी है वो फजल हक वाली तक पहुंच गई है। अब वो हमसे सिर्फ 800 मीटर के करीब दूर है और गवर्नमेंट ने, बहुत सारे ऑफिसरों ने जो अब रिटायर भी हो गए हैं, उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे। लिहाजा हमारी डिमांड यही रहेगी कि हमें भी उसे कनेक्ट किया जाए। स्कीम तथा वन रखी ज़ुकूरा स्कीम वातनोक अबू बकर कॉलोनी हबक ये अप्रोच बेस 800 मीटर दूर तथ वन फजल हक कॉलोनी ओत वातनोक सान खतर थोक तथ 1.2 इंच पॉइंट कर इग्नोर या अप्रोच या कह चीज वोनुक तो। इधर वादी के मुख्तलिफ मकामात से पानी की शदीद किल्लत की शिकायत मौसूल हो रही है। जनूबी कश्मीर के कई गाँवों के अवाम ने पीने के पानी की फराहमी के हवाले से शिकायत दर्ज की है। कुलगाम जिले के अशपूजी इलाके के लोगों ने कहा है कि इस इलाके में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। इन लोगों ने इंतजामिया से इस ज़िम्न में तवज्जो देने की मांग की है। जम्मू कश्मीर की खवातीन जिंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करती रही है। रेशीपोरा बांडीपोरा से ताल्लुक रखने वाली 29 साल आसिया बेगम इंडोर मेडिसिनल प्लांट मशरूम और सब्जियों की काश्त करने में एक अहम मकाम हासिल कर चुकी है। आसिया अपने मकान के छत पर मशरूम और दीगर कुछ सब्जियां उगा रही है और इसे हर महीने 40,000 रुपए की आमदन हासिल हो रही है। आसिया बेगम दीगर कई लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बनी हुई है और इलाके की कई लड़कियां अब इस काम की तरफ आ रही है। आसिया बेगम ने कहा है कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इस तरह के कारोबार में शामिल होना चाहिए। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें
YouTube पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।